Good morning children. Welcome to our next class for accounting. And children, till now हम लोग क्या कर रहे थे? We were just learning about the theoretical aspect of accounting. That हमने अभी तक theory पढ़ा था कि why accounting is done, हम क्यों करते हैं accounting, what are the targets, what are the objectives, what is the advantage of accounting, what are the limitations of accounting, how accounting is different from bookkeeping. This all we did in chapter number 1, that was the introduction to accounting portion. That in chapter number 2 we started with the basic accounting terms कि क्या क्या होती हैं. There are certain terms which are specifically used in accounting only, like capital है, liabilities हैं, assets हैं, transactions हैं, events are there. So these were the certain terms: purchases, sales, goods, stock. अभी तक हम इन सबको सेम मानते थे, लेकिन where purchase word is used, where sales word is used, these were the certain terms which we read about them in chapter number 2. Then we started with the theoretical base of accounting, that the accounting is based on certain principles and concepts and conventions. We started that also. Now today we will be starting with the practical part of accounting. From today we will be doing the practical portion, that is how accounting is done. कैसे करते हैं? अब आज से हम इसका practical work start करेंगे. And the very first basis, the very first practical thing which we will be doing is accounting equation. Accounting equation. Before starting accounting equation, let me first discuss the meaning of equation. Equation क्या होती है? सबने 10th तक maths पढ़ी है, and all of you know that equation is a mathematical expression, mathematical term, जिसमें क्या होता है? LHS is always equals to RHS. Two sides are there, and at the end both these sides are equal. Left hand side is always equals to right hand side. यही equation होती है, यही आपने पढ़ा है, यही मैंने भी पढ़ा है till now कि what equation is. Equation is basically a mathematical expression in which both the sides, that is the left hand side and the right hand side, are equal. Always they are equal. If they are not equal, then that means there is some mistake in the question, या हमसे कुछ गलती हुई है. अब अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें. नाउ लेट अस जॉइन दिस टर्म इक्वेशन विद अकाउंटिंग. तो दैट मीन्स कि अकाउंटिंग से रिलेटेड इक्वेशन. अब अकाउंट्स में क्या होता है? अकाउंट्स में आपके क्या होते हैं? असेट्स होते हैं. अकाउंट्स में आपकी लायबिलिटीज होती हैं. यही बेसिक दो टर्म्स होती हैं जिसके लिए आप अकाउंटिंग करते भी हो. हम अकाउंटिंग करते क्यों है? क्योंकि हम ये जान सकें कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी हैं. तो इन्हीं दो टर्म्स की जब आप एक इक्वेशन बनाते हो, तो दैट इक्वेशन इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन. मीन्स द इक्वेशन विच इज प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड द असेट्स एंड द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन. नाउ क्या होगा? टोटल असेट्स इज इक्वल्स टू टोटल क्लेम्स. हमेशा लायबिलिटीज आपकी क्या होती हैं? क्लेम्स होते हैं, है ना? मतलब कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपके जो असेट्स होंगे वो हमेशा किसके बराबर होंगे? आपकी टोटल लायबिलिटीज के बराबर होंगे. दिस इज क्लियर. अब ये क्यों होगा? वाई? कोई रीजन होगा? तो द रीजन बिहाइंड दिस इज चिल्ड्रन कि यार अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल. ये एक प्रिंसिपल मैंने पढ़ा था, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था मैंने, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. अब ये क्या है? तो दिस प्रिंसिपल या दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट कि अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, each and every transaction affects two sides. Each and every transaction affects two sides. One is debit and the other one is
क्रेडिट। मीन्स हर ट्रांजेक्शन के बाद जो इम्पैक्ट आता है, जो इफेक्ट आता है, वो दो जगह पर आता है, एक होता है डेबिट में, एक होता है क्रेडिट में। ठीक है, मतलब हर ट्रांजेक्शन से मिनिमम 2 अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं। आई एम टॉकिंग मिनिमम, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड बाय ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। इसीलिए हर ट्रांजेक्शन के बाद मेरी जो इक्वेशन होती है कि टोटल असेट्स इज इक्वल्स टू टोटल क्लेम्स, हमेशा होता है ऐसा कि अगर 5000 मेरे असेट्स में इंक्रीज हो रहे हैं एक ट्रांजेक्शन के बाद, तो डेफिनेटली 5000 या तो मेरी लायबिलिटीज में इंक्रीज होंगे या मेरे असेट्स में से ही माइनस होंगे, ताकि बैलेंस जो है वो निल हो जाए। तो इतना समझ में आया अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। वो इक्वेशन जिसमें हर ट्रांजेक्शन के बाद योर टोटल असेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू योर टोटल लायबिलिटीज, जस्ट बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन द ड्यूअल एस्पेक्ट concept. This accounting equation is also known as children balance sheet equation. जब आप एट द एंड ऑफ द ईयर जो अपना लास्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो विच इज नोन एज बैलेंस शीट, तो उसमें भी यही होता है। ये अकाउंटिंग ये इक्वेशन पूरी होती है, फुलफिल होती है कि जो असेट्स होती हैं वो हमेशा लायबिलिटीज के बराबर होती है। तो अब देखते हैं कि कैसे होता है। लेट अस डू सर्टेन एग्जांपल्स, देन टुमारो वी विल बी डूइंग सर्टेन क्वेश्चंस। लेट मी एक्सप्लेन यू सर्टेन एग्जांपल्स लाइक, अच्छा वन मोर थिंग इज हियर चिल्ड्रन, कि जो टोटल क्लेम्स होते हैं चिल्ड्रन, ये टोटल क्लेम्स में आपकी दो चीजें आती हैं। तो ये जो इक्वेशन है हम इसको और अगर इलैबोरेट फॉर्म में देखें तो दिस इक्वेशन इज टोटल असेट्स is equals to capital plus liabilities। अब ये क्या, तो कैपिटल भी हमारी एक तरीके की लायबिलिटी होती है। मैंने आपको बताया था whatsoever the amount is invested by the business in the businessman in the business is known as the capital, and ये हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं अकाउंटिंग, एंड फॉर बिजनेस द कैपिटल इन्वेस्टेड इज अ लायबिलिटी बिकॉज उसको कभी ना कभी बिजनेसमैन को वापस करना पड़ता है। तो जो हमारी इक्वेशन है इट इज बेसिकली असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कुछ चीजें होती हैं जो पार्टनर की कैपिटल से ली जाती हैं या पार्टनर को कैपिटल में दी जाती हैं, प्रॉफिट्स उसके कैपिटल में ऐड किए जाते हैं, एक्सपेंसेस उसकी कैपिटल से माइनस किए जाते हैं, एंड जो लायबिलिटीज हमारी होती हैं उन लायबिलिटीज में हम क्या लेते हैं बच्चे, जो भी हमारा एक्सटर्नल पार्ट है वो सब हमारा किसका पोर्शन होता है, लायबिलिटीज का पोर्शन होता है। जो हमें आउटसाइडर्स को पे करना है दैट इज लायबिलिटी, और जो हमारी कैपिटल होती है दैट इज नोन एज इंटरनल लायबिलिटी, एंड इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द टोटल लायबिलिटीज। तो योर इक्वेशन इज असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल। 500 रुपीज मुझे मिले, अब मेरी इक्वेशन इससे कैसे इक्वल होगी, तो इट कुड बी लाइक 500 जब मुझे मिले तो वो मेरे लिए असेट है बिकॉज कैश हमेशा असेट का पार्ट होता है। अगर 500 मेरा असेट साइड में इंक्रीज हो रहा है तो इट कुड बी लाइक कि 500 मेरा लायबिलिटी साइड में भी इंक्रीज हो, और इट कुड बी लाइक कि 500 मेरा यहाँ पे असेट में इंक्रीज हो और असेट में से ही 500 जो है वो माइनस हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, या तो ये हो सकता है कि किसी अमाउंट से आपकी दोनों साइड मीन्स योर लेफ्ट हैंड साइड एंड योर राइट हैंड साइड इज इंक्रीजिंग, या तो आपका LHS और RHS दोनों इंक्रीज होता है तब इक्वेशन इक्वल आती है, या दोनों डिक्रीज होता है तब इक्वेशन इक्वल आती है। इट कुड बी अगर सेम साइड पर है तो वन आइटम इज इंक्रीजिंग एंड द अदर वन इज डिक्रीजिंग, तब इक्वेशन सेम होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दोनों साइड में है तो दोनों साइड में या तो इंक्रीज होगा तब इक्वल आएगा, दोनों साइड में है तो दोनों साइड में डिक्रीज होगा तब इक्वल आएगा, या अगर एक ही साइड के दो आइटम्स हैं
तो एक इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा, तब बैलेंस इक्वल आएगा। तो इट कुड बी इन एनी वे, 3 टाइप्स में से किसी भी तरीके से ये इक्वेशन आपकी बैठ सकती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 500 रुपीज थे, 500 रुपीज अगर आपको मिले हैं तो ये आपका इंक्रीज भी हो सकता है दोनों साइड में, या दोनों साइड में डिक्रीज भी हो सकता है। और इट कुड बी लाइक कि 500 आपका यहीं पर असेट में ही इंक्रीज हो रहा है और असेट से ही डिक्रीज हो रहा है, और अगर ऐसा होगा तो योर इक्वेशन विल बी इक्वल। एंड ये ध्यान रखिएगा, if it is not equal after a particular transaction, then it means there is some mistake which is done by you in the above transactions which you have already solved. So this is all basically children what accounting equation is. This was the theoretical part जो अभी हमने पढ़ा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ओके, आई स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1 लाख। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपीज के कैश से। मैंने 2 साइड बनाई। आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग इट रफली, ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता। व्हेन वी डू द क्वेश्चंस वी जस्ट प्रिपेयर अ प्रॉपर फॉर्मेट। अब जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करती हूं, तो बिजनेस के लिए वो कैश बिजनेस में आया। क्यों आया? क्योंकि कैपिटल इन्वेस्ट की थी। मैंने स्टार्ट किया, मैं बिजनेस का ओनर हूं और जो भी पैसा मैं बिजनेस को दूंगी वो बिजनेस के लिए क्या है? कैपिटल है। तो बिजनेस में पैसा आया, क्या आया? कैश आया। कैश क्या है? बिजनेस को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। दैट्स व्हाई कैश इज अ एसेट फॉर द बिजनेस। जो भी चीज बिजनेस को स्ट्रेंथ देती है, ऑल दोस पर्टिकुलर थिंग्स आर द assets for the business। मैंने आपको बताया था liabilities are the responsibilities and assets are the strengths of the business। कैश आया, कितना आया? 1 लाख आया। किस लिए आया? क्योंकि कैपिटल आई। तो ये आपकी क्या हो गई? दोनों साइड्स इक्वल हो गई। तो चिल्ड्रन, इन दिस मैनर अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑलवेज इक्वल। फिर आई एम रिपीटिंग, दोनों साइड्स या तो इंक्रीज होंगी, दोनों साइड्स या तो डिक्रीज होंगी, और इट विल बी increase in one item and decrease in one item on the same side। same side means दोनों items या तो asset के होंगे तो एक increase होगा, एक decrease होगा। दोनों items अगर liabilities के होंगे तो one item will increase and the other item will decrease। Tomorrow we'll be doing the questions regarding this। Till now that's all, just revise the content। Thank you।